welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is rights of an agent or duties of a principal. So guys, so far we have discussed concept of agency, essential elements for a valid contract of agency, then we have discussed types of an agent and various modes of creation of an agency. So guys, if you have not watched my previous videos, please go and watch those videos before you watch this video. And guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, today we will be discussing rights of an agent. A point to be noted is that क्योंकि guys देखो जो एक इंसान के rights होते हैं, it is understood कि वो दूसरे इंसान की duties होंगी, right? तो हम इस concept को will be discussing it in 2 videos. इसमें हम discuss करेंगे rights of an agent, which in turn are obviously duties of a principal. Then in my upcoming video we'll be discussing duties of an agent, which in turn will become rights of principal. So इस तरीके से हम इसको discuss करेंगे. So guys, there are 5 different rights of an agent जिसको हम discuss करेंगे. First is right to remuneration. Second is right to retain money. Third is right to exercise lien over property, which is right to retain or withhold property. Fourth is right to indemnity and fifth is right to claim compensation. So various provisions of the Indian Contract Act are covered under this concept of rights of an agent or duties of a principal. So guys, without any further delay, let's get started with first important right of an agent, which is right of remuneration. Remuneration का मतलब क्या होता है guys कि agent definitely is somebody who is employed by a principal and who represents principal in his business dealings with third persons. तो basically जो agent होता है वो अपनी services provide करता है principal को और third parties के साथ dealing करता है और principal का एक contract conclude करवाता है with the third parties, right? So सबसे पहला important right as per section 219 and 220 of the Indian Contract Act deals with right to get remuneration. Remuneration is nothing but payment or commission. So section 219 को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट पार्ट इसका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, सेकंड हम बिल्कुल अगले ही important राइट में डिस्कस करेंगे. सो सेक्शन 219 पार्ट 1 टॉक्स अबाउट, वो बोलता है कि कब एक एजेंट की रेम्यूनरेशन ड्यू होती है. व्हेन एजेंट्स रेम्यूनरेशन इज ड्यू. ड्यू मतलब कि प्रिंसिपल की तरफ उसका पैसा पड़ा है और प्रिंसिपल ने उसको पे करना है. सेक्शन 219 क्लियरली बोलता है कि जब तक एजेंट ने जो काम अंडरटेक किया है करने के लिए, जब तक उसने वो काम कंप्लीट नहीं कर लिया, अनटिल एंड अनलेस दैट पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन कंप्लीटेड व्हिच हैज बीन अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली बाय एन एजेंट, राइट, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि एजेंट की जो रेम्यूनरेशन है वो ड्यू है. मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देती हूँ. फॉर एग्जांपल गाइस, देयर इज अ पर्सन एजेंट, प्रिंसिपल ने एक एजेंट को एम्प्लॉय किया और उसने कहा कि मुझे एक एस्टेट खरीदनी है, एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप जाओ मार्केट में जो भी अच्छी एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, मेरे लिए उसको परचेज करना है हमने, और आपको मैं 2% कमीशन दूंगा आउट ऑफ द प्राइस मनी जितनी भी होगी. अब गाइज, जब तक एजेंट मार्केट में नहीं जाएगा, वो मार्केट में जाएगा भी, लेकिन जब तक उसको वो प्रॉपर्टी, वो एस्टेट नहीं मिलेगी जो प्रिंसिपल को चाहिए, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि एजेंट का पैसा उसको दिया जाएगा. कहने का मतलब है कि जब तक एजेंट ने अपना काम जो उसने पर्सनली अंडरटेक किया है कि मैं करूँगा, जब तक उसने वो काम नहीं किया तब तक उसको जो है वो रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, लीगली लॉफुली उसको नहीं मिलेगी. लेकिन वंस ही हैज़ कम्प्लीटेड दैट वर्क, फिर उसको रेम्यूनरेशन लेने से रोक भी कोई नहीं सकता, क्योंकि वो उसका एक लीगल राइट बन जाता है अंडर सेक्शन 219 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आई होप आपको हिंदी में बेसिक समझ आ चुका है. कहने का मतलब है कि जब तक एजेंट ने जो काम पर्सनली अंडरटेक किया है टू परफॉर्म, यानी कि until and unless he has rendered his services and completed the work which he has undertaken to perform on behalf of the principal, जब तक उसने वो काम नहीं किया तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि उसका जो रेम्यूनरेशन है, कमीशन है या पेमेंट है वो ड्यू है. लेकिन once he has performed, once he has concluded business dealings with principal, between principal and third parties, उसके बाद वो उसका एक लीगल राइट बन जाता है टू क्लेम रेम्यूनरेशन, टू क्लेम कमीशन और पेमेंट, और उसके बाद उसको कोई रोक भी नहीं सकता. प्रिंसिपल उसको फिर मनी देने से, उसका कमीशन देने से मना नहीं कर सकता. बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, तब गाइज ये जनरल रूल फॉलो नहीं होगा. आई ऑलवेज टेल यू कि ये एक जनरल रूल है जो मैंने आपको बताया. जनरल रूल ये है कि जब तक उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तब तक उसकी पेमेंट्स आर नॉट ड्यू.
तब तक हम नहीं कहेंगे कि उसका पैसा प्रिंसिपल की तरफ है और प्रिंसिपल ने उसको पे करना है। बट वंस ही हैज़ परफॉर्म्ड, वंस ही हैज़ कंप्लीटेड वर्क विच ही हैज़ अंडरटेकन टू परफॉर्म, उसके बाद प्रिंसिपल उसके मनी को रिटेन भी नहीं कर सकता, प्रिंसिपल को उसको पैसा देना होगा बिकॉज इट हैज़ बिकम हिज लीगल राइट। बट गाइज देर इज अ इफ देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, इट मीन्स इस जनरल रूल के अगर कॉन्ट्ररी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है, वो जो स्टिपुलेशन है वही फॉलो होगी, ये जनरल रूल फॉलो नहीं होगा। आई होप आपको इलस्ट्रेशन से ये पॉइंट समझ आ चुका है। बट गाइज बहुत बार ऐसा होगा ना, व्हाट इज दिस कमीशन, जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशन दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपको 2% कमीशन दूंगा आउट ऑफ द एस्टेट प्राइस, जितनी भी उसका प्राइस होगा उसमें से आपको कमीशन 2% मिल जाएगी। बट गाइज इट मीन्स यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कमीशन इज एज अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज, ऑलरेडी वो डिसाइड कर लेती हैं कि आप ये काम करो, प्रिंसिपल बोलता है एजेंट को कि आप मेरे लिए ये काम करो और इतनी आपको कमीशन बीच में से मिल जाएगी। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज गाइज कि कमीशन माइट नॉट बी ऑलरेडी डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड नहीं होती, या फिर जो एजेंट होता है ही फेल्स टू बेसिकली सेटिस्फाई द कोर्ट कि हमारे बीच में कमीशन डिसाइड हुई थी। प्रिंसिपल बाद में मना भी कर सकते हैं कि मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा, और एजेंट कोर्ट में ये प्रूफ भी नहीं कर पाता कि हमने डिसाइड ऑलरेडी कर रखा था, करी थी तो कितनी कमीशन हमने ऑलरेडी बिफोर हैंड डिसाइड करी थी, वो एजेंट नहीं भी प्रूव कर पाता। तो इट इज़ इम्प्लाइड अग्रीमेंट, मान लिया जाता है कि अगर एक्सप्रेसली आपने नहीं भी करी ना अग्रीमेंट, तो ये मान लिया जाता है कि इफ एन एजेंट इज अ कमर्शियल एजेंट, अ बिजनेस एजेंट, अ मर्केंटाइल एजेंट और अ प्रोफेशनल एजेंट, तो मान लिया जाता है इट इज डीम्ड कि उसको कुछ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन मिलेगी, क्योंकि गाइस एजेंसी इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। तो जो इंसान एजेंट होता है उसको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन तो बनती है, इफ इट इज डिसाइडेड बिफोर हैंड देन इट इज एज अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज। बट कई बार अग्रीड होता है, नहीं भी होता, सो इट इज डीम्ड। बहुत सारे केसेस में ऐसा आया कि इट इज डीम्ड, हम मान लेंगे कि देयर वॉज एन इम्प्लाइड अग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, क्योंकि एजेंट ने प्रिंसिपल का कोई काम किया तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा। इट इज डीम्ड इफ ही इज अ कमर्शियल और प्रोफेशनल एजेंट, उसको कुछ रीजनेबल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन मिलेगी। बट नाउ व्हाट इज दिस रीजनेबल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द यूजेज एंड कस्टम ऑफ ट्रेड। जो उसने ट्रेड किया उस ट्रेड में कितनी रेम्यूनरेशन मिलती है एक एजेंट को, कितने % मिलती है यूजुअली, वो उस पर डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एजेंसी, राइट, इट विल डिपेंड अपॉन द ऑर्डिनरी यूजेज ऑफ डीलिंग, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग्स में जैसा होता है वैसा किया जाएगा। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। सेक्शन 220 टॉक्स अबाउट, Section 220 guys is an exception, a kind of exception to Section 219 of the Indian Contract Act, because Section 220 बोलते हैं कि अगर एक एजेंट ने बिजनेस मिसकंडक्ट किया है तो उस बिजनेस मिसकंडक्ट के लिए उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी भी एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। एक एजेंट है, ए ने बी को कहा अपने एजेंट को कि 1 लाख रुपीज़ मेरे हैं वो जो सी के पास पड़े हैं, उस इंसान से आप पैसा लेके आओ। बी ने क्या किया, ए ने उसको कहा पैसा लेके आओ और उसको एक अच्छी जगह पे आप इन्वेस्ट करो। बी ने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ सी से वो ले आया एज एन एजेंट ऑफ ए, और उसने क्या किया, उस 1 लाख में से 90,000 रुपीज़ को तो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, बट 10,000 रुपीज़ को उसने वेस्ट कर दिया। उसे पता था कि ये 10,000 रुपीज़ में गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसका रिटर्न अच्छा नहीं होगा, एंड इट विल बी टू द लॉस ऑफ माई प्रिंसिपल, उसके लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे प्रिंसिपल के लिए। अब इट मीन्स एजेंट ने क्या किया, इस एग्जाम्पल में बी ने क्या किया, नोइंगली बिजनेस मिसकंडक्ट किया। तो हमारा सेक्शन 220 एज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 219 ये बोलता है कि इस सिचुएशन में जो एजेंट होगा वो रेम्यूनरेशन या कमीशन या पेमेंट क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने आपका काम किया और आप मुझे पैसा दो, यानी कि ही हैज़ लॉस्ट हिज राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन फॉर दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच ही हैज़ मिसकंडक्टेड और मिसअप्रोप्रिएटेड। यानी कि उसको 90,000 रुपीज़ जो उसने सही जगह इन्वेस्ट किए उसके लिए तो उसको उसकी रेम्यूनरेशन मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ उसने 10,000 रुपीज़ को मिसकंडक्ट किया, मिसअप्रोप्रिएट कर दिया, इधर उधर कर दिया, गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया नोइंगली, वहाँ पे ही हैज़ लॉस्ट हिज राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन, पेमेंट और रेम्यूनरेशन। तो सिर्फ इतना ही है सेक्शन आपको 220 की, अगर वो बिजनेस मिसकंडक्ट करता है इन एनी केस तो वहाँ पे ही हैज़ लॉस्ट हिज राइट बेसिकली ऑफ क्लेमिंग रेम्यूनरेशन in respect of that part which he has misappropriated or misconducted. I hope guys आपको समझ आ चुका है। Talking about next important right which is right to retain money. वैसे तो section 217 of the Indian Contract Act and part 2 of section 219 ये दोनों बात करते हैं राइट टू रिटेन मनी, यानी कि जो एजेंट होता है उसका एक राइट होता है कि वो मनी को रिटेन कर सकता है। अब गाइस रिटेंशन ऑफ मनी मीन्स यू कैन रिटेन इट, यू कैन रिटेन इट विद योरसेल्फ। अब कोई एजेंट प्रिंसिपल की मनी को क्यों रिटेन करेगा? पहली बात तो प्रिंसिपल की मनी आएगी कहाँ से? एजेंट ने बिजनेस डीलिंग्स करी विथ थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, थर्ड पार्टीज के साथ बिजनेस डीलिंग सब कंक्लूड होगी, तो जो पैसा एजेंट के पास आया, मैंने आपको बताया था इन द वेरी फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ कि वो इंसान एजेंट उसको रिटेन नहीं कर सकता। जो पैसा एजेंट को मिला
वो एजेंट को आगे प्रिंसिपल को देना है और अपना जो हिस्सा है वो रख सकता है। उसके बाद जो भी बचा वो प्रिंसिपल को वापस करेगा। इट मीन्स जो भी उसके एक्सपेंसेस हुए वो रख के बाकी प्रिंसिपल को दे सकता है। बट गाइज ये भी एक एजेंट का राइट है, राइट टू रिटेन मनी, जो उसको बिजनेस डीलिंग्स कंक्लूड करने के बाद विद थर्ड पार्टीज जो उसको पैसा मिला, instead of sending that money back to the principal, he can exercise right of lien basically over that money. He can retain it, he can retain that money. क्यों? Because his dues aren't paid. सीधी सी बात है, क्योंकि उसके dues aren't paid, जो अमाउंट उसको मिलनी चाहिए वो प्रिंसिपल उसको नहीं दे रहा। लेकिन एज सुन एज प्रिंसिपल ने उसके डिमांड को पूरा कर दिया, देन ही हैज़ टू रिलीज दैट मनी, और जो भी डिडक्शंस के बाद नेट रेमिटेंस बचता है वो प्रिंसिपल को देगा। तो सेक्शन 217 एंड पार्ट 2 ऑफ 219 सिर्फ इतनी ही बात करता है कि एक एजेंट का क्या क्या खर्चा हो सकता है। सबसे पहला तो एजेंट की कमीशन अंडरस्टूड है, जो उसने काम किया उसकी जितनी % कमीशन एज वाज ऑलरेडी डिसाइडेड, और अगर डिसाइडेड नहीं थी तो रीजनेबल कमीशन विच विल डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ दैट केस, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ एजेंसी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग्स, उन सभी पर डिपेंड करेगा कि कितनी उसको रीजनेबल कमीशन मिलनी चाहिए। वो कमीशन उसको डिडक्ट करनी है बीच में से। फिर गाइस कुछ एडवांसेस भी होते हैं जो ऑलरेडी एजेंट ने किए होते हैं, तो वो भी एडवांसेस वो वापस रिकवर करेगा प्रिंसिपल से, या फिर एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड। बहुत बार ऐसा होगा कि एजेंट का खर्चा हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड। अगर कोई एक्सपेंस प्रॉपर्ली इनकर किया, प्रॉपर्ली का मतलब है कि ज़रूरत थी, नेचर ऑफ एजेंसी ऐसी थी कि कोई ना कोई खर्चा करना पड़ा। इम्प्रॉपर्ली का मतलब होता है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उसकी ज़रूरत नहीं थी, ऑर्डिनरी नहीं था, नॉर्मल नहीं था, आपने अपनी मर्जी से कर दिया, वो खर्चा आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एक ऐसा खर्चा था, एक ऐसा एक्सपेंस था विच वॉज नेसेसरीली इंसिडेंटल टू दैट बिजनेस ऑफ एजेंसी, तो वो भी वो जो है एजेंट है वो क्लेम करेगा। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि एजेंट के ड्यूज आरंट पेड, एजेंट का पैसा जो उसको मिलना चाहिए वो प्रिंसिपल ने नहीं दिया, इसीलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 217 एंड पार्ट 2 ऑफ 219 ही कैन रिटेन दैट मनी। और वो ड्यूज कौन से होंगे समझ जाना। उस ड्यूज का मतलब होता है फर्स्ट इज हिज कमीशन, second is his advances if made any, and third is expenses properly incurred. Properly incurred का मतलब कि necessarily incidental to that business of agency. improper नहीं होना चाहिए, मतलब उसने अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस किए तो फिर वो रिटेन नहीं कर सकता। अब गाइस टोटल मनी में से जो उसको थर्ड पार्टी से मिली, जब टोटल मनी में से वो इन 3 चीज़ों को डिडक्ट कर देता है ना, जो हमारे पास बचता है दैट इज कॉल्ड नेट रेमिटेंस। अब वो नेट रेमिटेंस उसको वापस करनी है। सिर्फ इतना ही लिखा है सेक्शन 217 पार्ट 2 ऑफ 219 एंड 218। तीनों सेक्शंस यही डिस्कस करते हैं कि आप मनी रिटेन करो जब तक आपकी सर्विसेज के लिए जो आपने पार्ट परफॉर्म किया प्रिंसिपल के लिए, जब तक आपको उसके लिए रेम्यूनरेशन नहीं मिलती, आपके ड्यूज जितने भी हैं अपार्ट फ्रॉम रेम्यूनरेशन, अपार्ट फ्रॉम कमीशन, इसमें एडवांसेज एंड एक्सपेंसेस ऑलरेडी प्रॉपर्ली इनकर्ड भी आते हैं। तो जब तक आपका ये पैसा नहीं मिलता, यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ लीन। एंड सेक्शन 218 टॉक्स अबाउट नेट रेमिटेंस। नेट रेमिटेंस मतलब जो बैलेंस बचता है आफ्टर दीज डिडक्शंस फ्रॉम द टोटल मनी, वो आपको प्रिंसिपल को वापस करनी है। ये आपका राइट नहीं है कि आप उसको भी रिटेन करके रखोगे, राइट। यू आर ड्यूटी बाउंड एज एन एजेंट कि जो बैलेंस बचता है आपका जो है वो आप रख लो, उसके बाद आपको प्रिंसिपल को वापस करना है, राइट। यू कैन नॉट अनजस्टली एनरिच योर सेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स, एज आई ऑलवेज से। नेक्स्ट गाइज वी टॉक अबाउट राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन इज क्वाइट सिंपल। जैसे कि राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? टू विदहोल्ड सम प्रॉपर्टी, राइट। आपको मैंने ऑलरेडी बताया राइट ऑफ लीन इज नथिंग बट टू विदहोल्ड और टू रिटेन सम प्रॉपर्टी। बट गाइज द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट राइट ऑफ लीन इज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड राइट। ये रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस किस तरीके से है? राइट ऑफ लीन मीन्स यू हैव अ राइट ऑफ रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैन बी एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास अगर आपकी इन पोजेशन में है, ऑनरशिप तो नहीं होगी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एजेंसी, जो भी प्रिंसिपल की चीज़ आपकी पोजेशन में है, बी इट गुड्स, बी इट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स और एनी अदर प्रॉपर्टी, कोई भी पेपर्स, कुछ भी है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी आपके पास पड़ी है आपके प्रिंसिपल की इन पोजेशन, आप उसको रिटेन कर सकते हो। बट गाइस सिर्फ और सिर्फ एज एन एजेंट आप उसको रिटेन ही कर सकते हो, यू कैन नॉट सेल इट एंड यू कैन नॉट डिस्पोज इट ऑफ। इसीलिए आई से राइट ऑफ लीन इज अ रिस्ट्रिक्टेड राइट। रिस्ट्रिक्टेड राइट का मतलब है कि इट इज क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन ओनली रिटेन इट एट मैक्स, यू कैन नॉट सेल इट, यू कैन नॉट डिस्पोज इट ऑफ, आप वो नहीं कर सकते। और आपने रिटेंशन भी क्यों कर रखी है? प्रॉपर्टी जो मूवेबल इमूवेबल है उसको आपने क्यों पकड़ रखा है? बिकॉज अगेन आपकी जो ड्यूज हैं वो प्रिंसिपल ने पे नहीं किए, आपकी कमीशन आपको मिलनी चाहिए, एडवांसेस इफ एनी वो भी आपको मिलने चाहिए, एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड वो भी उसने आपको नहीं दिए, इसीलिए यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ लीन। तो आई होप आपको राइट ऑफ लीन भी समझ आ चुका है गाइज।
सो इसमें बेसिकली हम सेक्शन 221 की बात करते हैं और 221 सिर्फ इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि यू हैव अ राइट ऑफ लीन, आप उसको विदहोल्ड करके रख सकते हो। सो गाइस टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट राइट विच इज़ राइट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है गाइस? नुकसान की भरपाई करना, राइट। इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। अब गाइस अगर सपोज एजेंट का कोई भी नुकसान हुआ प्रिंसिपल के कारण, तो प्रिंसिपल इज बाउंड। गाइज हम सिर्फ और सिर्फ एजेंट के राइट्स नहीं रीड कर रहे, हम साथ के साथ प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ भी रीड कर रहे हैं। अगर एजेंट का राइट है रेम्यूनरेशन का, तो प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि ही हैज़ गॉट टू रेम्यूनरेट हिज एजेंट। सिमिलरली ये सारी प्रिंसिपल की साइड बाय साइड ड्यूटीज़ भी रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या राइट ऑफ इंडेमनिटी, एक एजेंट का राइट होता है कि ही कैन गेट इंडेमनिटी, नुकसान की भरपाई वो अपने प्रिंसिपल से करवाएगा और प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो अपने एजेंट के नुकसान की भरपाई करेगा। अब आपको मैं इसमें बताती हूँ कि सेक्शन 222, 223 दीज टू सेक्शंस बेसिकली टॉक्स अबाउट अगर सपोज एक एजेंट ने कोई भी लॉफुल एक्ट किया, उस लॉफुल एक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस होगा, अगर वो ऐसा कॉन्सिक्वेंस है विच इज़ इंजूरियस और डेट्रामेंटल टू एन एजेंट, तो एजेंट नुकसान की भरपाई करवाएगा। 223 टॉक्स अबाउट अगर ऐसा कोई भी एक्ट एजेंट ने किया विच इज़ इन गुड फेथ और उसका कॉन्सिक्वेंस भी ऐसा है विच इज़ डेट्रामेंटल और इंजूरियस टू राइट्स ऑफ एन एजेंट, तो वहाँ पे भी एजेंट इंडेमनिटी करवाएगा। मैं आपको इलस्ट्रेशन दोनों सेक्शंस की देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइज आई एम एन एजेंट, ठीक है, मैंने क्या किया, मेरा सपोज आई एम एन एजेंट, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप सी के साथ, सी सम अदर पर्सन थर्ड पार्टी, उसके साथ आप डीलिंग करो और हम उसको गुड्स भिजवाएंगे। मैंने कहा ठीक है हम सी के साथ डीलिंग्स करेंगे। ए ने, मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि मैं आपको गुड्स भेजूंगा और आप आगे उन गुड्स को सी को भेज देना। आई सेड ओके। व्हाट हैपेंड इज सी को भी गुड्स तो भेजूंगी तब ना जब मेरा प्रिंसिपल मुझे गुड्स डिस्पैच करेगा। प्रिंसिपल ही फेल्ड टू डू दैट, प्रिंसिपल ने गुड्स को डिस्पैच नहीं किया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट सी हैज़ फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट मी, सी ने मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब गाइज यहाँ पे आई हैव टू हायर अ काउंसिल और मुझे अपने सूट को डिफेंड भी करना होगा, बहुत खर्चा हुआ मेरा। दीज आर एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड, मैंने अपनी मर्जी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे नहीं करे, इट वॉज समथिंग नेसेसरीली इंसिडेंटल क्योंकि सी ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया। अब यहाँ पे इट वॉज अ लॉफुल एक्ट which I was involved in. As an agent, I was involved in some lawful act, which was an authorized act also. Lawful मतलब something which is not unlawful. Something which is not unlawful is something which is legal. It means जो चीज़ unlawful होती है वो forbidden by law होती है। मैंने यहाँ पे एक lawful act किया, that too something which is authorized by my principal itself. प्रिंसिपल ने मुझे अथॉरिटी दी थी कि आप सी के साथ बिजनेस डीलिंग्स करो, मैं आपको गुड्स डिस्पैच करूंगा, आप आगे उसको भेज देना। बट व्हाट हैपेंड इज कि प्रिंसिपल ने एजेंट को डिस्पैच नहीं किया। एज अ रिजल्ट जो थर्ड पार्टी से उसने एजेंट को क्या किया, स्यू कर दिया। अब एजेंट का तो खर्चा हो गया अपने सूट को डिफेंड करने के लिए, काउंसिल को हायर करने के लिए। दीज आर एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड। अब यहाँ पे मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा, मेरा प्रिंसिपल करेगा। आई होप आपको गाइस समझ आ रही है। तो सेक्शन 222 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसी इंडेमनिटी की बात करते हैं कि एजेंट का राइट है टू इंडेमनीफाई हिमसेल्फ। अगर उसका नुकसान हुआ, अगर उसको कोई भी लॉस हुआ, कोई भी डैमेज, कोई भी इंजरी सस्टेन हुई एज अ रिजल्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की गलती के कारण अगर मुझे कोई भी नुकसान होता है, प्रोवाइडेड दैट एक्ट मस्ट बी अ लॉफुल एक्ट। आई हैव सफर्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ लॉफुल एक्ट जो मेरी तरफ से हुआ। मैंने लॉफुल एक्ट किया विच वॉज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय माई प्रिंसिपल ऑल्सो, बट प्रिंसिपल के कारण मेरा नुकसान हुआ, सो ही ऑट टू इंडेमनीफाई मी, उसकी ड्यूटी है और मेरा राइट है। सिमिलरली सेक्शन 223 बात करते हैं कि अगर सपोज मैं एजेंट हूँ, मैंने कोई भी एक्ट किया इन गुड फेथ और उसका कॉन्सिक्वेंस भी ऐसा निकला जो मेरे लिए इंजूरियस था, तो उसकी इंडेमनिटी भी मेरा प्रिंसिपल करेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइज देयर इज अ पर्सन ए, अगैन मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आई हैव सो एंड सो गुड्स, ये मेरी पोजेशन में है, आप क्या करो कोई भी थर्ड पार्टीज को ढूंढो हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस डीलिंग्स विद अस, और आप क्या करो उनको ये गुड्स बेच दो। गाइज आई वॉज एन एजेंट, आई वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस कि वो जो चीज़, वो जो गुड्स प्रिंसिपल के पास पड़ी हैं, मेरे प्रिंसिपल के पास पड़ी हैं, देवर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, प्रिंसिपल का टाइटल नहीं था उस पर, वो ट्रू ऑनर कोई और ही था, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं बताया और उसने मुझे कहा कि आप थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग्स करो। आई कंक्लूडेड बिजनेस डीलिंग्स विद थर्ड पार्टीज, बट जब ट्रू ऑनर को पता लगा कि ये गुड्स को तो आगे बेच दिया गया, तो उसने मुझे स्यू कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में तो बिजनेस डीलिंग्स तो मैंने करी थी, तो उसने क्या किया, मुझे स्यू कर दिया। नाउ आई वाज एक्टिंग इन गुड फेथ एंड ड्यूली ऑथराइज्ड बाय माय प्रिंसिपल, मैंने अपनी ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी भी नहीं करी, मुझे मेरे प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी थी इस चीज़ की और मैंने ये काम कर दिया, बट आई वाज एक्टिंग इन गुड फेथ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू ऑनर आता है और मुझे स्यू करता है। अब यहाँ पे भी जो मेरा नुकसान होगा, अगैन टू डिफेंड माय सूट, टू हायर अ काउंसिल, जितना भी मेरा एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड होंगे, मैं वो अपने प्रिंसिपल से क्लेम कर सकती हूँ। सो सेक्शन 222 एंड 223 सिर्फ इसी चीज़ की बात करते हैं कि अगर एक एजेंट है,
who was acting within the scope of his authority. प्रिंसिपल ने उसको ड्यूली अथॉरिटी दी थी कि आप ये काम करो, एंड मेरे को फिर भी डिस्पाइट दैट फैक्ट, डिस्पाइट हैविंग अथॉरिटी, मेरे को कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़े ऑफ दैट लॉफुल एक्ट विच वॉज ऑथराइज्ड बाय माई प्रिंसिपल एंड आई वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ. तो वहाँ पे मैं उस नुकसान की भरपाई अपने प्रिंसिपल से करवाऊंगी और मेरा लॉस होने नहीं दिया जाएगा. वहाँ पे प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है, ही ऑट टू इंडेमनिफाई मी, राइट. एंड सेक्शन 224 गाइज इज अ वे एन एक्सेप्शन टू 222 एंड 223. जिस तरीके से सेक्शन 220 वॉज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 219, उसी तरीके से ये सेक्शन भी 222 एंड 223 की एक्सेप्शन है. बिकॉज 224 सेक्शन 224 टॉक्स अबाउट कि जो एक एजेंट क्रिमिनल ऑफेंस करता है, उस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उसको जो है नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी. अब आपको समझ आए, फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पीपल अगेन ए एंड बी. ए ने अपने प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को कहा कि सो एंड सो इज अ पर्सन, सी पर्सन है, उसको जाके आप किडनैप करो या फिर आप उसको बीट करो, जाके आप उसको मारो, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको आपके नुकसान की भरपाई करूँगा. पहली दो सेक्शंस में तो हमने ये देखा कि प्रिंसिपल ने नुकसान की भरपाई नहीं करी. प्रिंसिपल ने ऐसा नहीं कहा था कि मैं आपके नुकसान की भरपाई करूँगा, राइट. फिर भी प्रिंसिपल को नुकसान की भरपाई करनी होगी बिकॉज वो उसकी ड्यूटी है. बट इस सेक्शन में क्या हुआ, अनलाइक दोज टू सेक्शंस, यहाँ पे 224 में क्या हुआ, प्रिंसिपल ने कहा कि आप जाके उस इंसान को मार के आओ क्योंकि मेरी बहुत दुश्मनी है उसके साथ, यू गो एंड बीट हिम एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपके नुकसान की भरपाई करूँगा. यहाँ पे गाइज बेशक प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली प्रॉमिस कर दिया, अनलाइक दीज टू सेक्शंस ऑफ पॉइंट टू बी नोटेड, फिर भी यहाँ पे जो एजेंट होगा ही कैन नॉट क्लेम हिज एक्सरसाइज, ही कैन नॉट बेसिकली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ इंडेमनिटी, और वो इंडेमनिटी क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि गाइज ये क्या है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है. क्रिमिनल ऑफेंस को करने के लिए अगर आप करते हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली यू विल बी टेकिंग बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग, और वहाँ पे फिर आप इट्स एन एक्सेप्शन टू दीज टू सेक्शंस, देन यू कैन नॉट क्लेम इंडेमनिटी. ठीक है, अगर आपका जेन्युइनली कोई लॉफुल एक्ट आपने किया या फिर अगर ठीक है आप गुड फेथ में थे, वहाँ पे आपके प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती कि वो आपको इंडेमनिफाई करे. लेकिन यहाँ पे डिस्पाइट योर प्रिंसिपल प्रॉमिसिंग टू इंडेमनिफाई यू, वहाँ पे आप इंडेमनिटी क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज यू आर समबडी हु इज एट फॉल्ट, राइट. एंड यू शुड कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स. जब आपको पता है कि आपने एक ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते कॉम्पेंसेशन. आई होप गाइज आपको समझ आ चुका है. सो दिस सेक्शन इन अ वे इज एन एक्सेप्शन टू दोज टू सेक्शंस. टॉकिंग अबाउट लास्ट राइट विच इज राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन. गाइज कॉम्पेंसेशन हम कब क्लेम करते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हमने रीड किया था कि डैमेजेस का मतलब क्या है, कॉम्पेंसेशन, या कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है डैमेजेस क्लेम करना. जब मुझे कोई भी डैमेज हुआ, कोई भी इंजरी हुई, कोई भी मैंने लॉस सस्टेन किया एज अ रिजल्ट ऑफ माई प्रिंसिपल्स वॉन्ट ऑफ केयर, हिज नेग्लिजेंस, तो वहाँ पे आई कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम माई प्रिंसिपल. कॉम्पेंसेशन इज डैमेजेस. डैमेजेस कब मिलेंगे, जब मुझे डैमेज हुआ या इंजरी या फिर कोई भी लॉस सस्टेन हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ माई प्रिंसिपल्स नेग्लिजेंस, हिज वॉन्ट ऑफ स्किल एंड वॉन्ट ऑफ केयर, तो वहाँ पे ही इज ड्यूटी बाउंड दैट ही हैज़ टू कॉम्पेंसेट मी. फॉर एग्जाम्पल गाइज, ए एंड बी अगैन आर टू पीपल, ए इज अ प्रिंसिपल, बी इज समबडी जिसको उसने एम्प्लॉय किया कि आप ब्रिक बिल्डिंग का काम करोगे, यहाँ पे मेरे ब्रिक्स लगाओगे, बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है. अब गाइस क्या किया, ए इज समबडी हु इज ऑब्वियसली द प्रिंसिपल, ए ने क्या किया, स्कैफोल्डिंग को खुद ही लगा दिया. बट ऑब्वियसली सिंस ही वॉज नॉट समबडी हु वॉज प्रोफेशनल इन दैट वर्क, ए ने वो स्कैफोल्डिंग लगा तो दी, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज लैक ऑफ केयर, वॉन्ट ऑफ केयर एंड स्किल, व्हाट हैपेंड इज वो स्कैफोल्डिंग जो है उसने बी को इंजोर कर दिया, ब्रिक बिल्डर को इंजोर कर दिया. यहाँ पे जो ब्रिक बिल्डर होगा वो क्या है, ही इज समबडी हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन बाय वे ऑफ डैमेजेस फ्रॉम हिज प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल की यहाँ पे नेग्लिजेंस थी, उसकी वॉन्ट ऑफ केयर और स्किल के कारण उस इंसान को क्या हुआ, नुकसान हुआ. सो गाइज आई होप आपको ये सारे राइट्स क्लियर हो चुके हैं विच इन टर्न आर ड्यूटीज ऑफ द प्रिंसिपल. एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट गाइज, ये जो हमने एक राइट डिस्कस किया था ना, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड राइट. मोर ओवर ये मैं वैसे पॉइंट ऑफ क्वालिटी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्योंकि राइट ऑफ लीन कम्स टू एन एंड as soon as a person has parted with the possession. Once you have parted with that possession, उसी चीज़ को वापस से आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते. जब तक वो चीज़ आपके पास है तब तक उसको आप रिटेन कर सकते हो. ये आपका लीगल राइट है कि यू कैन रिटेन इट, यू कैन विद होल्ड इट, बट वंस यू हैव पार्टेड विद इट, वापस से आप उसको रिटेन नहीं कर सकते. जो चीज़ आप एक बार यू हैव पार्टेड विद इट, यू कैन नॉट रिटेन इट ऑल ओवर अगैन. आई होप ये बेलमेंट में भी डिस्कस किया था पॉइंट हमने, आई होप आपको ये पॉइंट पता होगा. एंड गाइज एक हमने और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया, राइट ऑफ
राइट ऑफ लीन में एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, यस इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है, जस्ट लाइक सेक्शन 219, वहां पे भी हमने डिस्कस किया कि वैसे जनरल रूल दैट यू कैन रिटेन दैट प्रॉपर्टी बी इट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी until and unless your dues are not paid, right? But if there is a contract to the contrary guys, वही होता है कि वहां पे फिर contract to the contrary ही prevail करेगा, जनरल रूल prevail नहीं करेगा. It means while entering into a contract, अगर प्रिंसिपल और एजेंट ने डिसाइड किया था कि कम वॉट में जो मर्जी हो, यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर राइट ऑफ लीन, एंड इफ एजेंट हैड अग्रीड एट दैट टाइम, तो वहां पे फिर बाद में एजेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन. ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, देन दिस जनरल रूल विल नॉट बी फॉलोड, दैट स्टिपुलेशन विल बी अपहेल्ड एंड इट विल बी फॉलोड as already decided between the parties. I hope guys all these important rights of an agent and duties of a principal are clear to you. So guys, I'll be coming up with more videos on agency. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.